السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ جی۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بے قدم کر رہے ہیں، ان کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں اس میں سے۔ یہ جو پیج ہے یہ پہلا ہی ہے، کیونکہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے دکھانے میں، تو پیج یہ پہلا ہی ہے، لیکن آگے انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس کے آگے۔ تو ہم نے کیا تھا قتل کی کوشش تک کر لیا تھا، اب ہم نے کرنا ہے آج کڑی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں کیسے آئیں اور کس طرح کی آئیں۔ تو دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یہ بھی دعا ہے نا، جی آب زمزم کے لیے جو پیتے ہیں، تو جی یہ دعا جب آب زمزم پیتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں بڑے پیار کے ساتھ۔ درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی۔ کڑی آزمائش۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں، یعنی کہ اپنے جتھے کا دعویٰ کر دیا بھی میں زیادہ طاقت والا ہوں لوگوں کے اعتبار سے، میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں۔ کدھر ہم نے پڑھا تھا قرآن میں جس نے کہا تھا میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں جتھے کے اعتبار سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے؟ نہیں، سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا دو باغ والوں کے قصے میں، ادھر پڑھا تھا۔ اچھا بہت نے کہا میں زیادہ گروہ والا ہوں، بڑے گروہ والا ہوں۔ اس بار سورۃ العلق کی آیت نمبر 17 اور 18 نازل ہو گئی، جس کا ترجمہ ہے سوجے اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر آیتوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بطحہ والوں کا محافظ ہوں، اور میں جہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ آپ کو پتا بطحہ کیا؟ بطحہ وادی تھی نا، ہے نہیں سنا نام۔ اچھا آپ نے نہیں پہلے سنا؟ اچھا بطحہ کے تو بارے میں نعتیں بھی ہے نا، ہوگی سسٹر۔ بطحہ کو جانے والوں
अच्छा। आका दो जहां को मेरा सलाम कहना, कुछ इस तरह का है। अच्छा। जी। तो बता एक वादी का नाम था। बा, तौ, तोई वाली तौ, तौ और अच्छा। जीम हलवे वाली हा और अलिफ, बतहा। अच्छा। उस वक़्त अल्लाह ताला ने सूरत अद-दुखान की आयत 49 नाज़िल फरमा दी। जिसका अल्लाह मुहाफ़िज़ हो, जिसकी तरफ से अल्लाह जवाब दे रहा हो, उससे क्या मुकाबला है किसी मखलूक का। जी। कैसे अल्लाह जवाब उसी वक़्त उतार देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन के खामोश हो जाते थे, लेकिन कितनी तकलीफ़ होती होगी ना। हुँ। कोई चैलेंज करे आके, हमें तो ज़रा-सा कह दे कोई तो इतना दुःख होता है, हाँ जी। रोते भी हैं फिर। लेकिन देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कड़े-कड़े अल्फाज से आके तंज़ किया जा रहा था। तो तर्जुमा है इसका, चख तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। क्या चख फिर? अज़ाब। अज़ाब का मज़ा। अज़ाब अज़ाब। तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ है ना, बड़ा इज़्ज़त जी। वाला है, बड़ा मुकर्रम है। हुँ। तो अल्लाह ताला ने ये दे दिया आयत। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक़्त फटकारते हुए कहेंगे। जब वहाँ पे डालेंगे तो जी। फिर ये अल्फाज, ये जो आयत है ये फरिश्ते बोलेंगे जहन्नम में डालते हुए उसे। जी। अबू लहब भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ार सानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। अबू लहब की बीवी जो नहीं इमरा, वो है, उधर भी सूरत लहब हाँ, में जिक्र किया गया सूरत उसका ना, रहब रहम भी में है ना है। उसका। हाँ जी। वहां ही। तो वो भी आगे आगे थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था, साथ में बीवी भी यही काम करती थी। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुगलियां लगाती फिरती और लोगों को भड़काती फिरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और आपके साथियों के खिलाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये काम वो करती थी। तो वो क्या करती थी कि जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती, कितनी मेहनत करती थी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के रास्ते में तकलीफें और रुकावटें डालने के लिए। लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस बार अल्लाह ताला ने सूरत लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगोला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, औरत बहुत बदज़ुबान है, ज़ुबान दराज़ है। अगर आप जहाँ ठहरे तो इसकी बदज़ुबानी से आपको तकलीफ पहुँचेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रिश्तेदार दे रहे हो ना तो डबल तकलीफ पहुँचती है। उनकी बात सुनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नजदीक आई। उसे वहां सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? उसे वो शायर कहते थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। शायर, मजनून, दीवाना, काहन, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा, वो बोली। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उसने मेरी शान में नाजीबा शेर कहे हैं। वो सूरत लहब की आयत को शेर समझ रही थी। उस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम वो शायर नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहाँ पे नहीं है वो। उन्होंने कहा वो शायर नहीं है। उसकी बातों को उसके ऊपर दे रहे हैं वापस जवाब। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं।
ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छिपा लिया था। सुभान अल्लाह। एक रवायत के मुताबिक आपने ये जवाब अरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी, यानी एक पर्दा, एक कर्टन। अबू लहब के एक बेटे का नाम उत्बा था और दूसरे का नाम उतैबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अनहुमा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह ही हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज हुआ और अबू लहब नाजिल हुई, सूरत अबू लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, यानी कि उनको तलाक दे दो। अभी बेटी घर से रुखसत नहीं और तलाक आ गई है। क्या? इस्लाम के नाम पर सिर्फ, क्योंकि बाप ने दावा कर दिया इस्लाम का, इसलिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जाए, जिन्हें हम गौर करें तो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहिबजादियां उत्बा और तैयबा के यहाँ ना जाए। कितनी तकलीफ हर रोज वो उठाती, फिर घर चली जाती तो। कभी सोच सकते हैं हम? जो औरत खुद लकड़ियां ला ला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचा रही है, इतना वो गंद बोल रही है और सब कुछ, तो वो औरत कैसे अपनी बहुओं को वो जीने देती कहीं? तो ये अल्लाह ताला ने बेहतर किया। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर खत्म हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आप दोनों चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां थी, इसलिए ये कदम उठाया गया। कितनी एक बाप के लिए, माँ बाप के लिए तकलीफ होती है कि बेटी घर पे आके बैठ जाए, या बेटी घर पे ही रह जाए, भी एक हो कि हुई 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 है इसका निकाह या कुछ, तो फिर घर पे बैठे। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिन देखा। इस मौके पर अतीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह के नबी देखो, कहे किसी मजलूम को कभी नहीं सताना चाहिए और उसको तंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो तकलीफ हो से जुल्म उसके ऊपर हुआ हो, और दूसरा ये है कि उसको ऊपर से और ताने दिए जाएं और सताया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी। हम्म अतीबा जिस बात दुआ सुनकर वहां से लौट आया, उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। उसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क के शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया, उसने उन्हें बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। उसने हम्म काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है, यानी मैं सरदार हूँ तुम्हारा, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज हम्म है। उन्होंने एक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रख कर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, यानी सामान के ऊपर बिस्तर लगा दो ऊंची जगह पर, और उसके हम्म, चारों तरफ तुम लोग बिस्तर लगा दो। हिफाजत यानी मेरे बेटे हाँ की जी करो। इन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊँटों को भी बैठा दिया। हम्म इस तरह अतीबा उन सब के दरमियान में आ गया। अब वो सब उसकी पासबानी करने लगे, यानी कि हिफाजत करने लगे। जी
इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई पूरी हो गई। सुभान अल्लाह। निसफ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, जहां तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उत्तवा तक पहुंच गया, क्योंकि ऊंचा सोया हुआ था ना। जी। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। तकालीफ पहुंचाने का एक और वाकया इस तरह पेश आया। अब अपना बेटा भी खो दिया ना, उनकी बेटियों को तलाक दी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जिंदा तो रही ना। हाँ जी। तो एक और वाकया इसी तरह पेश आया कि एक रोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़िबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। वो लोग उन जानवरों की एक ओजरी अभी तक वहीं पड़ी थी, यानी कि बुतों के नाम पर कुर्बानियां की और ओजरी वहीं पे पड़ी थी। इसमें अब ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दे? एक रवायत के मुताबिक उससे किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहां जाए जहां फलां कबीले ने जानवर ज़िबा किए हैं? उनका गोबर, लीद, खून और ओजरी वहां पड़े हैं। कोई शख्स वहां जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने का इंतजार करे। फिर यूं ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान डाल दे। कंधों के दरमियान क्या था? मोहर थी ना। मोहरे नबुव्वत थी। हाँ हाँ जी। जी। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा, उसका नाम उकबा था बिन अबी मुईत। उकबा बिन अबी मुईत था। ये अपनी कौम में सबसे ज्यादा बदबख्त था। बदबख्ती ही थी ना कि अल्लाह के नबी हाँ सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम पर ये काम करने लगा। ये गया और ओजरी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओजरी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन जोर जोर से हंसने लगे, जहां तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। सोच सकते हैं, हम्म। इतना हंस रहे थे। ऐसे में किसी ने हजरत फातिमा तल जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये एक बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और ओजरी आपके कंधों पर थी, क्योंकि ओजरी हैवी होती है, भारी होती है, हम्म। गंदगी से खास भरी हुई। हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ओजरी को आप पर से हटाया। उसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारग होकर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक में बद्दुआ की। बद्दुआ के खुद ही मुस्तहिक हो रहे थे। हाँ जी। हाँ, कि देखो, अगर कोई इतना अक्लमंद होता वो तो एक बेटा खोने के बाद वो समझ आ जाती उसे कि इसके साथ तो अल्लाह जी। है ना, और इसकी बद्दुआ भी कबूल हो गई और हाँ फिर भी वही कर रहा। उसे कोई भी बदनसीबी की उसकी भी कोई हद नहीं थी। जी। तो वो क्या कहने लगा, ए क्रैश के लोगो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बद्दुआ फरमाई, फरमाया, ए अल्लाह तू क्रैश को जरूर सजा दे। ए अल्लाह तू क्रैश को जरूर सजा दे। ए अल्लाह तू क्रैश को जरूर सजा दे। कहाँ दुआ कर रहे हैं खड़े होके? खाना काबा के पास। उधर मस्जिद हराम में, हम्म। अल्लाह के घर के पास। हम्म। कुरैश जो मारे हंसी के लोट पोट हो रहे थे, ये बददुआ सुनते ही उनकी हंसी का बंद हुई। फौरन रुक गई। इस बददुआ की वजह से वो दहशत ज़दा हो गए। उन्हें पता भी था, फिर भी ऐसा हाँ क्यों जी, फिर करते भी थे ना। करते। बस उसके जिद बाद मान लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर भी बददुआ की। ए अल्लाह। अल्लाह तू अमर बिन हशाम को सजा दे, यानी अबू जहल को। अबू जहल हम्म। का नाम ये है, अमर बिन हशाम। अबू जहल तो कहते थे ना जहालत का बाप, हम्म। उसको मिल गया था ये लक़ब। उकबा बिन अबी मुईत और अमैया बिन खलफ को सजा दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन क्रैशियों का नाम लिया था, मैंने उन्हें गजवाए बदर में खाको खून में लुथड़ा हुआ देखा, जिस हम्म। तरह उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था।
और फिर उनकी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था, क्योंकि जितने काफिर हो गए थे ना, मर गए थे जी उधर, सभी को इकट्ठा करके एक गड्ढा खोद के डाल दिया गया था, ताकि उनसे गंदगी खत्म हो जाए उधर जमीन से। गड्ढे में, डंच में एक में डाल दिया था। इसी तरह का एक वाकया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह बयान फरमाया है। सहाबा इकराम बाद में बयान करते थे, क्योंकि देखते थे ना उस वक्त हाँ मक्के में जी क्या हो रहा है, सामने उनकी आंखों के हो रहा था, लोग सुन रहे थे, घरों में जाके बता रहे थे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। हिजर अस्वद के पास 3 आदमी बैठे थे। जब आप हिजर अस्वद के पास से गुजरे और उनके करीब पहुंचे, तो उन तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात व बरकात पर चंद जुमले कसे। हम्म, इन जुमलों को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंची। तकलीफ के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चेहरे जाहिर हुए। दूसरे फेरे में अबू जहल ने कहा, तुम हमें इन मबूदों की इबादत करने से रोकते हो, जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं, लेकिन हम तुमसे सुलह नहीं कर सकते। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी यही हाल है, यानी मैं भी नहीं सुलह कर सकता आपसे। हम्म, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। तीसरे फेरे में भी उन्होंने ऐसा ही किया, कहा। फिर चौथे फेरे में ये तीनों एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटे, यानी कि अब वार कर दिया। हम्म, तो अब नतीजा भी तो उन्हें भुगतना है ना वार किए का। अल्लाह के नबी हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तो यानी के साथ तो अल्लाह की जात है ना। जी हजरत खबाब दो चाँद 2 टुकड़े हो गया, इनवान है इसका। हम्म, हजरत खबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, और ये वो जमाना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब जुल्म किया जा रहा था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? यानी आप दुआ नहीं करते कोई कि हमारे ऊपर इतनी तकलीफें आ रही हैं। हम्म, मेरे अल्फाज सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए, यानी कि चौकन्ने हो गए। हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब जब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की कंघियां की जाती थी, जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थी, उस तरह से मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से ना हटा सकी। यानी तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं अभी हो रहा, हम्म, ऐसा जो पहले लोगों पर हुआ। तो हर ज़माने में मुसलमान ऐसे यकीन वाले रहे हैं। हर ज़माने में ऐसे यकीन वाले मुसलमान रहे हैं जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई। मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से ना हटा सकी। उनके सिरों पर आरे चिल्ला-चिल्ला कर उनके जिस्म दो-दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। उस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैलाएगा कि सना के मुकाम से हज़रमौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। ये दूर-दूर इलाके थे, हम्म, सराआ का इलाका और हज़रमौत का इलाका, एक दूसरे से बहुत दूर थे। यानी कि इन इलाकों में यानी खतरनाक सफ़र जो है अकेले ही कोई कर सकेगा। जो जे जिन इलाकों में सफ़र करना कहते हैं ना, बहुत खतरनाक है, रात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कई दफ़ा सुना होगा आप लोगों ने। इस इलाके का खतरनाक सफ़र है, रात नहीं करना, किसी ने जाना नहीं उधर। तो ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, एक पेशन गोई की कि वो आसानी के साथ सवार जो है अपनी सवारी लिए सिवाय अल्लाह ताला के खौफ के किसी का वो खौफ नहीं होगा उसे। जहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतल्लक भेड़ियों का डर नहीं होगा। कब ऐसा हुआ था? कब ऐसा हुआ था?
हजरत उमर रजी अल्लाह हजरत ताला हजरत अन्हु जी के जमाने में भी हाँ हुआ जी था जी, है ना। हजरत हाँ जी हजरत जब उमर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उनकी हाँ जी जमाना खिलाफत दौरे खिलाफत था, खिलाफत के तो जमाने में हाँ, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी दरियाए फुरात तक गई उनकी हुकूमत थी और हिफाजत करते थे। और एक दफा फरमाया कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई भेड़िया किसी बकरी को खा गया तो उमर से क़यामत वाले दिन उसका हिसाब होगा। जी। पूछा जाएगा उमर से कि तेरी सल्तनत में, तेरी हुकूमत में भेड़िया कैसे खा गया बकरी को। बकरी को और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिस दिन मौत वाक़या हुई थी, शहीद किए गए थे, तो उस दिन एक दूर दराज इलाके में एक भेड़िए ने कहा था कि आज कौन बचाएगा तुम्हारी हम्म, बकरियों को। और एक शख्स ने कहा था उसके बकरी को भेड़िया खा गया, तो उसने कहा उमर का इंतकाल हो गया, दूर दराज इलाके में था कहीं। जी। तो उसने कहा उमर का आज इंतकाल हो गया है। लोगों ने कहा तुम्हें क्या पता, कैसे जी। पता तुम्हें चला। कहने लगा कि आज भेड़िया मेरी बकरी खा गया है। हम्म, यानी वो हिफाजत उठ गई है हमसे आज, जो 10 साल तक उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जानों का, मालों का, इज़्ज़तों का, और हर तरह का इंसाफ कायम किया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और दूर-दूर इलाकों तक फ़तह हुई थी जी। इस्लाम की। इस्लाम का परचम सरबुलंद हुआ था जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलाके में, यानी टाइम में 10 साल हुकूमत उन्होंने की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत का ज़माना कितना था, किसी को पता है? 2 साल कुछ। सिर्फ़ 2 साल कुछ हाँ था, जी। है ना? हाँ जी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की और चारों तरफ इस्लाम के डंके बजा दिए। जी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत ख़बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई गई। फिर वो कौन है जी? गुलाम थे उस वक़्त ना। हम्म, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर उसको इस वक़्त तक नहीं हटाया गया, जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से ना बुझ गई। अच्छा। सुभान अल्लाह! इतनी तकलीफ़ें देते थे कुरैश जो जी। थे अपने गुलामों को भी, जब कोई मुसलमान हो जाता था। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो कि वो भी गुलाम थे और पूरा ख़ानदान ही गुलाम था। जी। अम्मार यासिर की बेवियों में जो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनको तो बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जी। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासिर भी थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह-तरह के ज़ुल्म किए। आग से जला-जला कर अज़ाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ ले ले आ रहे थे। उस वक़्त अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग से जला-जला कर तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वज़ह से कोढ़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे, क्योंकि जब वो जलता है बार-बार हाँ तो जी। ऐसे सफ़ेद हो जाती है जिल्द। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, "ए आग ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी।" इस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। जब भी वो जलाते थे उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, उनके वालिद यासिर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सभी को जब ज़्यादा को लोगों का नाम लें तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम या हुम आगे। इन सभी को अल्लाह ताला का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन सजा अजाब दिए गए। एक रोज जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकालीफ को देखकर फरमाया, ए अल्लाह आले यासिर की मगफरत फरमा दे। उनकी वालदा सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल के चचा हज़ैफा बिन इब्ने मुगीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया था,
क्योंकि उनकी लौंडी थी ना, तो जी उन्होंने वो अबू जहल के हवाले कर दिया, और अबू जहल तो दुश्मनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आगे आगे दुश्मन था ना। जी तो वो कभी सोच सकते हैं कि अब उसका हुस्न सलूक, उसके उसके साथ सलूक क्या होगा। हम्म, ये उसकी बांदी थी, अबू जहल ने उन्हें नेजा मारा, इससे वो शहीद हो गई। कहा जाता है कि उसने नेजा उनकी शर्मगाह में मारा था। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ताला इतनी, ये इस्लाम की पहली शहीदा थी, हम्म, ये इस्लाम की पहली शहीदा थी। उस वक़्त इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहली शहीदा होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद यासिर भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने इन मज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ-साथ ये लोग हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअजिज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके करके दिखा दो। हम्म, वो भी इस तरह के एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर हो नजर आए, और दूसरा कैकेतान काईकान पहाड़, यानी पहाड़ों के नाम है 2, जी काईकान पहाड़ पर नजर आए। यानी कि इतने दूर हूँ वो एक दूसरे से, हम्म, नजदीक नजदीक नहीं बल्कि दूर दूर हूँ। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हूँ, ताकि जी उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक बाकी न रह जाए, आंखों को धोखा न हो। ये किसी ने गवाही भी दी थी कि मैंने अपने देखे इलाके में चांद का एक टुकड़ा देखा था जी उस वक्त। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये जो इंसानी तारीख में नहीं लिखा गया वाक्य ना, आखिर कितने लोगों ने देखा होगा, जी जा किसी को भी नजर नहीं आया, वल्लाहु आलम। तो ये फिर उस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, और चांद कितना था? पूरा पूरा चांद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने हम्म, कहा, एक जुबान होकर बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। आपने दुआ फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ऐसा हो जाए। चनाचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कायकान पहाड़ पर। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो, यानी कि ये हो गया जी है मुअजिज़ा। हम्म, उनके दिलों पर तो किफ़ल पड़े हुए थे। किफ़ल क्या होते हैं? ताले, ताले अल्लाह ताले 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 थे। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहते वो नहीं कहते थे। मोहम्मद ने हम लोगों की आँखों पर जादू कर दिया है। हम्म, अभी भी क्या कहा? पहले जादू मुआजिज़ा माँग रहे थे, अब कहते हैं जादू कर दिया। हम्म, कुछ ने कहा मोहम्मद ने चाँद पर जादू कर दिया है, मगर हम्म, उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सका। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चाँद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे थे। हम्म, अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे, यानी कि चाँद 2 टुकड़े हुए उन्होंने भी देखा था। जी चनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चाँद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ, हाँ, हमने भी चाँद को 2 टुकड़े होते देखा था। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। जब किसी ने ना बात मानी हो तो कोई बहाना बनाता है हाँ माने फिर भी नहीं है ना? आंदे। बहाने बहुत हैं। जी कुछ माने जी फिर भी कुछ तो ये फिर कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं। यानी जो खुद जादू करते हैं वो भी हाँ जी मुतासिर हो गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई जादू था, जी जिससे 500 जादूगर इस्लाम कबूल कर गए थे जब जी उन्होंने देखा था कि उनकी जी लाठियाँ और रस्सियाँ जो हैं वो अज़दहा बन के खा गई जाती हैं, हाँ जी निगल गए वो। तो वो भी जादू नहीं था, पैगंबरों के हाथों से जादू नहीं हुआ करता। जी कितने किस्मत थे वो लोग ना।
तो वो क्या कहने लगे, अल्लाह ताला ने इस बार सूरतुल कमर की आयत नाज़िल फरमा दी। तर्जुमा पढ़ के सुनाती हूँ। क़यामत नज़दीक आ पहुँची और चाँद शक हो गया, और ये लोग कोई मोजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चाँद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में ही नज़र नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उसका मुशाहदा किया गया। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने, यानी कि ये तारीख में, जैसे आज ये दूसरे लोग लिखते नहीं हैं मुसलमानों के अलावा। जो तारीख, इंसानी तारीख लिखी गई ना, जी। उसमें लोग लिखते नहीं हैं। हम्म, वल्लाहु आलम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही नबी हैं, तो उन पहाड़ों के दरमियान पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है। लो। ये भी मुतालबा था मक्के वालों का, ताकि हमारी आबादियां फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कह कर ऐसी नहरें जारी करा दें जैसी शाम और इराक में है, और हमारे बाप दादों को दोबारा जिंदा करा के दिखा दें। इन दोबारा इन दोबारा जिंदा होने वालों में कुस्सा बिन कलाब जरूर हूँ, क्योंकि कुस्सा बिन कलाब की ही औलाद थे ना ये सारे अरब जो थे बाद में आगे। जी। तो वो कहते हैं वो परदादा जो इतनी दूर का था वो जरूर सामने हो हमारे। सलाम फिर भी नहीं लाना था उन्होंने। हाँ, क्योंकि ये तो एक उनका ढकोसला था जी। सताने के लिए, इसलिए कि वो नहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था, गुस्सा जो था। जी। हमसे पूछेंगे, आप जो कुछ कहते हैं सच है। यानी उससे हम पूछेंगे, जिससे यानी गुस्सा से पूछेंगे, क्योंकि वो दाना और अक्लमंद इंसान था। तो हम उससे पूछेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ है। हम्म, क्या ही ढकोसला है ना एक। अगर हमारे उन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए, तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। इनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, यानी कि तुम्हें मोजज़े पर मोजज़े दिखाता रहूं, तुम्हारी फरमाइश पूरी करता रहूं, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम्हें मोजिज़े दिखा-दिखा कर तसल्लियाँ दूँ जी। कि और सच्चा साबित करूँ अपने आप को कि मैं रसूल हूँ। एक मुबल्लिग को क्या अपने आप को सच्चा करने साबित करने की ज़रूरत होती है? नहीं। नहीं होती। अगर वो वाक़ई अल्लाह की तबलीग कर रहा है, अल्लाह की किताब अल्लाह की सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक वक़्त आता है लोग खुद ही गवाही देते हैं। उसको ज़रूरत नहीं होती साबित सच्चा करने की कि मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने सूरत में यानी आयतें उतार दी कि उनको बता दे कि मैं इन कामों के लिए नहीं आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन ने कितने मुतालबे किए थे कौमे फ़िरौन जी। ने। हाँ जी। कितने ही तरह के उनके ऊपर अज़ाब आए थे, और फिर हर अज़ाब के हर बाद दफा क्या कहते कहते थे? हम हाँ जब भी जी अज़ाब आ जाता, दुआ ऐ करें मूसा अपने खुदा से दुआ कर कि वो इस अज़ाब को टाल दे, फिर तो फिर हमसे। हम ईमान ले आएँगे। जी। और हर बार उन्होंने ईमान नहीं लाए थे। जी। तो अल्लाह ताला फिर ये वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं कुरान में, कि ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाए हम्म, कि अल्लाह एक तो ये कि अल्लाह के आपके साथ है। दूसरी हम्म, तसल्ली ये हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं थे जिनसे हम्म, ये मुतालबे किए जा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उससे भी बढ़कर मुतालबे किए गए। हजरत हम्म, सालेह अलैहिस्सलाम से इतनी, वो पहाड़ी से ऊंटनी 12 हाँ यानी कि जी। ऊंटनी जो है 10 महीने में बच्चा जनती है। जी। तो वो 10 महीने की गाभना ऊंटनी जो है उन्होंने मांगी थी, और हम्म, उस ऊंटनी ने उनके सामने बच्चा जना था, लेकिन वो ईमान नहीं नहीं लाए। ला। नहीं लाए। उन्होंने ऊँटनी की कूंचे काट डाली थी। जी। बदबख्ती उनके ऊपर छा गई और अज़ाब आ गया। तो ये जो माँग रहे हैं, ये कोई ईमान लाने के लिए थोड़े माँग रहे हैं। हम्म, ये तो एक ना टाइम पास कर रहे हैं।
और सता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ भी होती थी, जब भी वो कोई मोजज़ा मांगते ना, तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी होते और दिल में कहते और कहते कि ए अल्लाह, अगर ये मोजज़ा आ जाए तो शायद ये मान जाए, क्योंकि तड़प बहुत थी कि मेरे लोग मान जाएं, जी कोई भी जहन्नम की आग में न जाए, बहुत तड़प थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ में होते थे। जब भी ये कोई मुआवजा मांगते तो हो कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला दिखा क्यों नहीं देते, दिखा ही दे, यानी कि होता है ना इंसान को जी कि दिखा दें तो चलो ये लोग जो है मान ले। तो ये कहाँ मानने वाले थे ना, ये मुशरकीन के मुतालबात एक नहीं थे, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। एक मुशरक कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाजारों में चलते हैं जिस तरह हम फिर चलते फिरते हैं, इसी तरह ही जिंदगी की जरूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक है कि नबी कहकर खुद को नुमाया करें। यानी हम में क्या फजीलत है एक्स्ट्रा आपको, और ये कि आपके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता, आपको सच्चा बताता, साथ साथ चलता रहता और बताता रहता कि ये अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान की आयत 7 उतार दी। तर्जमा है, और ये काफिर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूं कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता। यानी लोग डरते और मुसलमान हो जाते। इसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता, जहाँ इसके पास कोई गैबी बाग होता, जिससे जे खाया करता। और ईमान लाने वालों से जे जालिम लोग ये भी कहते थे, यानी कि जो मुसलमान हो जाते उनसे क्या कहते थे कि तुम तो एक बेअकल आदमी की राह पर चल रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मक्के के लोग जो नबूवत से पहले 40 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुशाहदा कर चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र तक उनमें रहे, बचपन से लेकर पैदा होने से पहले तक के हालात से वाकिफ थे अल्लाह के नबी के। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ऐस बेअकल नबूवत का दावा करते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह बेअकल हो गए। पहले उनसे खाना काबा वो क्या करवाया था, हिजर असवद किसने नस्ब किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। और सभी क्या कहते थे, आमीन आ गया, हम आमीन हाँ आ जी, गया, मीन आ जो जो गया। हाँ फैसला जी, करेगा हमें मंजूर है मंजूर है। हाँ है जी, ना, अमानतदार है। तो आप क्या कह रहे हैं, बेअकल। बेकार। फुह, कितना फिर जाते हैं ना इंसान। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जैसा ही एक इंसान रसालत का दावा कर दे। तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस की आयत नाज़िल फरमा दी। कैसे अल्लाह जवाब दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसे गए सवालों का। एक एक जवाब में अल्लाह कुरान की आयतें उतार रही हैं जो कि क़यामत तक आने वाले लोग पढ़ेंगे और उन पर लानत भी भेजेंगे जिन्होंने ऐसा किया, और अल्लाह की किताब की सच्चाई की गवाही देंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही देंगे। कुरान में आयतें आ रही हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा इसका, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के खिलाफ चलने पर डराए, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी दी जाए कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। अल्लाह हमें भी उनमें से कर दे। अल्लाह हम भी गवाही देते हैं इस बात की कि तेरे रसूल सच्चे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तू अल्लाह वाहदुल ला शरीक है। हमें भी ये रुतबा अता फरमाना। आमीन। उसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो जैसा कि तुम्हारा दावा है। कि यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ना कि अजाब आ जाएगा। तो वो कहते थे कि जो अजाब का दावा कर रहे हो ले आओ अब, जैसा कि तुम दावा करते हो।
और तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है। अस्तगफिरुल्लाह। वो तुम्हें जो बातें सिखाता है, हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। कहाँ हमने पढ़ा था? कुरान में पढ़ा था ना कि वो कहते हैं जी रहमान क्या है, हम नहीं रहमान को मानते। हाँ जी है ना, कुरान में पढ़ के आए हैं हम। हाँ जी जी तो जहाँ पे आपको जवाब मिल गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो आयत किन हालात में नाजिल हुई थी, जहां से ये पता चल रहा है कि हालात कौन कौन से थे जब आयतें नाजिल हुई। जी शान नुजूल देख रहे हैं ना आप, ऑटोमेटिकली ये लिंक्ड है। हम्म, हम्म, ये एक ही तस्बीह के दाने हैं, जिनको एक तस्बीह परोए बगैर आप तस्बीह नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस और कुरान साथ साथ चलेंगे, इनको अलग नहीं कर सकते आप, साथ साथ चलेंगे। अल्लाह ताला एक एक आयत उतार रहे हैं। शान नुजूल उनका ये है कि जहां वो कह रहे थे कि रहमान को नहीं हम मानते, अल्लाह ताला ने रहमान से सूरत रहमान भी निकाली ना, भेजी अल्लाह ताला ने। जी तो फिर वो सूरत रहमान जवाब था उसका, याद रखे। वो रहमान, उन्होंने कहा ना रहमान क्या है, तो अल्लाह हम्म, ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बान। तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। और दिया हाँ जी अर्रहमान कौन है? जिसने ये सब कुछ किया। ये जवाब था उस बात का। एक सूरत में अल्लाह ताला ने सवाल के तौर पर दिया उन्हें कि उन्होंने ये कहा, उसके उनके सवाल के जवाब में दिया, और फिर सूरत अर्रहमान उतार दी। सुभान अल्लाह। कैसे लिंक है ना सूरतों का भी एक दूसरे के साथ। जी कई दफा एक सूरत में सवाल किया जा रहा है, दूसरी सूरत में जवाब आ रहा है उसका। तो अल्लाह सुब्हान तआला की ये रहमानियत थी कि अल्लाह ताला ने सूरत अर्राद की आयत उतारी जब वो लोगों ने कहा कि क्योंकि वो किसी का गुलाम था, यमामा का बंदा, तो कहते थे कि वो आके इसको सिखा जाता है, उसका नाम कोई होगा रहमान या कुछ। जहां जहां रहमान से उन लोगों को उनके मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थे, कोई यहूदी काहिन जिसका नाम होगा, तो उससे था। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरत अर्राद की आयत नंबर 30 नाजिल फरमाई। तर्जमा आप फरमा दीजिए कि वो ही मेरा मुरब्बी, और मुरब्बी क्या होता है? पालने वाला। मुरब्बी रब से है, ठीक है, आला दर्जा है। मुरब्बी है और निगहबान है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मैंने इसी पर भरोसा कर लिया है और इसी के पास मुझे जाना है। आप आयतों का नोट करते जाएं और बेशक जाके ढूंढ सकते हो उन आयतों को, ठीक है, कुरान से। तो इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंज और गम की कैफ़ियत तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन ख़्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ गए। वो लोग याद है जो ताने कस रहे थे और बातें कर रहे थे, उनकी बात हो रही है अभी। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। देखा, हर कौम से बढ़कर फरमाइशें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, मुअजिज़ात की और अज़ाब लाने की धमकियाँ। सबसे बढ़कर, सब नबियों से, सब रसूलों से बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में सताए गए थे। तो फिर दर्जे भी अल्लाह ने वही बुलंद किए ना, सबसे बढ़कर। मुशरिकीन ने इस किस्म की फरमाइश जब दूसरी की, वो क्या कहते थे? कभी वो कहते सफ़ा पहाड़ को सोने का बनाकर दिखा दे, कभी कहते हैं सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़कर दिखाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही ये ऑफ़र आ चुकी थी अल्लाह की तरफ से कि अगर आप चाहें तो ये पहाड़ सोने के कर दिए जाएँ। तो जो ताइफ का सफ़र हुआ था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जब उन्होंने शरीर लड़के पीछे लगा दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव थे लहूलुहान थे, जूतों में पाँव थे तो लहूलुहान थे। जी
तो वहां पे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठते हैं गुलाम के साथ, अपने के साथ किसी बाग के बाहर, तो वहां पे फरिश्ता जबराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था और फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि इतने दुखी है मेरा महबूब, बहुत दुखी है, अब ढारस बंधाने के लिए फरिश्ते को भेज दिया। जाकर क्या फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो इसी वक्त इन पहाड़ियों को मैं इनके ऊपर गिराकर खत्म कर दूंगा, यानी ताइफ वालों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हो सकता है कि ये नहीं तो इनकी नस्लों में से मुसलमान होंगे, इस्लाम को मानेंगे, इसलिए इस नस्ल को रहने देना। उस दिन उस्तादा साहबा बता हाँ रहे जी थे ना, बता हाँ जी बता मैं भी वो कहने लगी बता थी ना। रहे हाँ थे जी। ना हाँ जी कि उन्होंने ताइफ वो तो वालों से, ताइफ वाले या औरतों से किसी ने सवाल किया, कहा कि तुम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देने वाली कौम हो। हाँ तो जी उन्होंने क्या जवाब दिया था? वो कह रहे नहीं हम उनकी दुआ हैं। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लम दुआ की है। दुआ हैं। हाँ जी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ दी थी कि इनकी नस्लों में से ऐसे होंगे जो मुसलमान होंगे। उन्होंने औरतों ने कहा तो था कि कैसे लिंक बन रहा आप है ना अल्लाह कुरान और हदीस का और आप नबी को सताने वाले हैं। हाँ जी तो उन्होंने हाँ, कहा कि नहीं हम उनकी दुआ हैं। हाँ तो जी पॉजिटिव वे सोचना है हमने ना, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं। जी तो वो कितने पॉजिटिव फिर सोचने लगे ना, ठीक है, हमारे इलाके के लोगों ने ऐसा किया था कभी, लेकिन हम ऐसे नहीं है। जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सोने के पहाड़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर आप चाहें, क्योंकि उस वक्त बहुत फक्र फाका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त नबी जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए अगर वो चाहते हैं तो मैं इन वादियों को, इन पहाड़ों को सोने का बना देता हूँ, यानी कि इतनी वाफर मिकदार में आपको रोजी मिल जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फक्र फाका पसंद किया था जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का चॉइस था कि अगर आप रहें, अगर फक्र फाका में रहते हैं और आखिरत में अच्छा ठिकाना चाहते हैं तो वो, और दूसरी चॉइस ये है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इन सब पहाड़ियों को क्या कर देता हूँ, सोने का बना देता हूँ आपके लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा चॉइस लिया था। सुभान अल्लाह कि एक दिन फाके से, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बताती हैं कि हमारे घरों में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, और हम जो है खजूर पर और पानी पर गुजारा किया करते थे। आज हम कितनी ही खजूरें खाते हैं। हजरत जो जो एक मैंने भेजा भी था थोड़े दिन, 17 रमजान के वक्त, 313 जी हाँ जी एक खजूर खाकर मैदान में कूदने वाले हाँ जी हाँ जी आपने सहाबा भेजा पर था। लाखों सलाम। जी मैंने देखा था। हाँ हाँ? जी 313। हाँ जी एक एक खजूर में, एक। हाँ जी एक खजूर और पानी से गुजारा करने वाले सहाबा, रमजान 17 रमजान को वो उन्होंने जंग बदर की थी, नहीं बदल। हाँ जी है ना। तो ये हम क्या भूल भुलैयों में है, हमारी तो हिस्ट्री हमें इतना कुछ बताती है कि हम हिम्मत तो करें, अल्लाह हमारे साथ है, कुरान बताता है हमें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रही है हमें, लेकिन हम हिम्मत हार गए। हमने गाँव की दुमें थाम ली हैं आज मुसलमानों ने। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई की थी मुसलमानों के बारे में कि जब तुम गाय की दुमें थाम लोगे, यानी कि खेती बाड़ी में मगन हो जाओगे, अपनी दुनिया में मगन हो जाओगे और जिहाद को छोड़ दोगे, तो तब जिहाल होगा तुम्हारा। उस वक्त सहाबा इकराम ने कहा था, "ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम थोड़े तादाद में होंगे, यानी मुसलमान थोड़ी तादाद में होंगे, इसलिए ये हाल होगा?" अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद तो बहुत होगी, लेकिन गलियों के आज क्या है, तिनकों की तरह है मुसलमान, उनका वजन नहीं किया जाता, उनकी तादाद गिनी जाती है।
अगर वजन किया जाना होता, वजन की उन्होंने अपनी ताकत दिखानी होती, तो जब फलस्तीन पे हमला हुआ था तो तब दिखाते, अपना वजन दिखाते मुसलमान। मुसलमान हुक्मरानों ने अपना वजन नहीं दिखाया। तो जी मुसलमान झाग की तरह बैठ गए हैं जहाद छोड़ के। तो जब तक कोई कौम जहाद छोड़े रहती है, कौमों का यही नसीब होता है। जब वो जहाद को पकड़ती है लाजमी, तो कौमों के मुकद्दर का सितारा जागता है फिर, क्योंकि उसी में बका है, जहाद में बका है तुम्हारी। तो जहां पर वापस आते हैं हमारे इस किस्से की तरफ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कदम ब कदम हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे कि वो, लेकिन उसके बाद भी अगर ये ईमान ना लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालबात जो वो कर रहे थे, उस पर जो मुतालबात है उनको भी पूरा कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ये ईमान ना लाए, फिर तो साबका कौमों की तरह इन पर हौलनाक अजाब नाजिल होगा। क्योंकि जब भी अल्लाह से किसी ने मुतालबा किया है अजाब का, जा मोजजे का, जब भी मोजजे का मुतालबा किया गया कौमों की तरफ से, उसके मोजज़ा ज़ाहिर हो जाने के बाद जब कौमों ने नहीं माना, तो कौमें अज़ाब में मुब्तला कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। और जो पूरे कुरान में हम पढ़ के आए हैं ना, जी। वैसे भी कुरान पढ़ने के बाद सीरत पढ़ने का कितना मज़ा आ रहा है ना। हाँ जी। ऐसे लगता है जैसे वो तस्बीह के मोती जो है वो जुड़ते जा रहे हैं एक-दूसरे के साथ, अब लिंक कर रहे हैं। पहले हम कुरान से हदीसें जोड़ रहे थे, अब हम हदीसों से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुरान जोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जहाँ पे मैं सॉरी ये पढ़ रही हूँ वो आयत का तो पढ़ दिया मैंने। फिर साबका कौमों की तरह इन पर अजाब भी नाजल हो जाता है, ऐसा अजाब कि आज तक किसी कौम पर नाजल नहीं हुआ होगा। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं चाहते, तो मैं इन पर रहमत और तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने चॉइस फिर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी कौम के लिए आप क्या चाहते हैं? जी। क्या है दोबारा सुनना वाह! चाहें तो? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं। किसने कहा था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर। क्यों? क्योंकि एक मिनट में मेरा ख्याल आगे पीछे हो गई हूँ, थोड़ा सा छोड़ गई हूँ। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पर आसमान टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। यानी तुम ये दावा करते हो कि रब जो चाहे कर सकता है, तो फिर आसमान को टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दो। हमें मालूम हुआ कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान जमामा का एक शख्स है। मैं आगे चली गई अब। तो ये यहूदी काहन की तरफ करते थे, और आयत सूरत अर्राद की 30 नंबर की नाजिल हुई थी। तर्जमा जो है वही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, उसके सिवा कोई मबूद इबादत के लायक नहीं। मैंने उसी पर भरोसा कर लिया है और उसी के पास मुझे जाना है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ख्वाहिश ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ गए। मशरकीन ने मुशरकीन मक्का ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी कहते हैं सफा पहाड़ को सोने का बना दें, कभी कहते हैं सीढ़ी के जरिए आसमान चढ़कर दिखाएं, आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आए। यानी कि आसमान पर सीढ़ी लगे, एक दुनिया तक सीढ़ी लगे और हम सब देखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चढ़े और साथ में आपके फरिश्ते वापस आए, यानी फरिश्तों को लेकर आए आप। असल ये है। तो ये उनकी बातें सुनकर अल्लाह सुब्हाना ताला के जवाबात आते रहे, है ना?
उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हजरत जबराईल अलैहिस्सलाम को जवाब देकर भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, और फरमाते हैं कि आप अगर चाहें तो सफा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। ये आगे आ गया वही। इसी तरह उनके जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए, यानी वो सारी सीढ़ियां और ये ला दी जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये लोग ईमान ना लाए तो फिर साबका कौमों की तरह इन पर हौलनाक अजाब नाजिल होगा। ऐसा अजाब के आज तक किसी कौम पर नाजिल नहीं हुआ होगा। यानी कि जितनी बड़ी कड़ी कड़ी मोजज़े मांगे, जितनी आजमाइशें मांगी अपने लिए, उतना बड़ा अजाब आएगा। इनके ज्यादा नहीं थी डिमांड, सब सब अंबिया इकराम की कौमों से ज्यादा डिमांड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने की थी। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके अल्लाह का पैगाम बता दिया, ऐसा अजाब कि आज तक किसी कौम पर नाज़िल नहीं हुआ होगा, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन पर रहमत और तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। तो क्या सोचते हैं आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चूज किया? तौबा का दूसरा। दूसरा दूसरा जी, तो इसीलिए हम भी इस वक्त हैं कुरान पढ़ रहे हैं। जी। तौबा का दरवाजा खुला रखा और और रहमत का दरवाजा खुला खुला रखा। हम कहते हैं ना, अल्लाह तेरी रहमत तेरे गजब पर भारी है ना? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, बारी ताला आप अपनी रहमत और तौबा का दरवाजा खुला रखें, यानी मुझे ये नहीं, इनका जवाब नहीं देना, जो जो मांग रहे हैं मुझे नहीं जवाब इनका देना, बस आप अपनी रहमत का दरवाजा और तौबा का दरवाजा खुला रखें इनके लिए। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि क्रैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर है, उन्हें पता नहीं है, जी, जी, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। क्यों? वजह क्या थी? ये क्यों नहीं जानते थे? क्या पढ़ के आए हैं हम पीछे? ये क्यों वजह को नहीं जानते थे रसूलों की को, रसूलें भेजे जाने की? क्योंकि इनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था। आपको याद होना चाहिए इन जी, चीजों को। अच्छा, अच्छा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था इनकी तरफ। हुँ, तमाम के तमाम अंबिया इकराम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हजारों की तादाद में औलादे इसहाक में आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक की औलाद में से आए थे। जहां तक कि कहा जाता है हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के दरमियान 1000 अंबिया आए थे। ये तो दोनों रसूल थे ना। हुँ, इन दोनों रसूलों के जमाने में जो गैप था, 1000 अंबिया आए थे, नबी आए थे 1000, जी, आई थी, अच्छा। जिनमें से कुछ को इन्होंने कत्ल कर दिया और कुछ को अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान में बार बार, हाँ कुछ जी, को इन्होंने जुटला दिया और कुछ को कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। तो इनकी तरफ इसीलिए तो इन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता है? नबी उम्मी। अनपढ़ थे खुद, लेकिन इनको जो यहूदी हैं वो क्या कहते थे? उम्मियों का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। इनको हुँ, उम्मी कहते थे, अनपढ़ कहते थे, यानी इनकी तरफ से कोई किताब भी नहीं आई, तो ये तो हुँ, चिट्टे अनपढ़ हैं, हम हमारी जुबान में लें तो। जी, इनको क्या पता? तो इसलिए वो कहते थे इनको हम जितना मर्ज़ी सज़ाएँ दें, सता लें, दुःख तकलीफ़ दें, इनका हमारे ऊपर अल्लाह ताला कुछ नहीं हमसे पूछेगा इनके बारे में। तो ये एक उनका ख़्याल था यहूदियों क्योंकि का। वो कहते थे कि हम रुतबे में बड़े हैं, हाँ जी। हाँ, क्योंकि हमारा रुतबा बड़ा है। हाँ जी, रुतबे में बड़े हैं, हाँ रुतबा जी। बड़े है। तो इसलिए भी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत हाजरा थी, स्लेव थी ना, क्योंकि उसने दी था ये हज़रत हाजरा को ही हज़रत सारा को ही दी थी ना, बादशाह ने दी थी लड़की। हुँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इराक से थी ना हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।
तो बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराक वालों के लिए बहुत दुआएं किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी भी फिर कहाँ से हुई, मारिया की बिटिया कहाँ से थी, इराक से थी इराक से, अच्छा। वो भी इराक से थी। तो यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी इराक से, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इराक से ही थे ना। हुँ। हजरत सारा भी इराक से थी, हजरत लूत भी इराक से थे। हिजरत करके गए थे ना, तीनों इकट्ठे हिजरत की थी उन्होंने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा ने, जो कि ईमान लाई आई थी, एक औरत ईमान लाई थी और एक मर्द ईमान लाया था बस, जी। पूरी कौम में से। तो जब मैं उनका देखती हूँ ना, तो मुझे कभी नहीं फिर होता कि हाय, क्यों नहीं आके लोग सुनते, क्यों नहीं पढ़ते। फिर मुझे ये होता है एक भी आके बैठ गया तो मैं कामयाब हो गई, हाँ जी। क्योंकि हाँ मैंने जी, पैगाम पहुंचा अपने दिया आप, अल्लाह का। हाँ जी, अपने मकसद में कामयाब हो गए। हाँ मैं जी। अपने मकसद में कामयाब हो गई, अगर एक हाँ, भी बंदे ने सुन के हाँ अमल जी, कर लिया तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ जी। इंशाल्लाह। तो ये उनका एक डिमांड अल्लाह ताला ने पूरी नहीं की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद चॉइस ले लिया कि इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला रहने दिया जाए और हाँ, रहमत का दरवाजा आप खुला सल्लल्लाहु अलैहि रहने वसल्लम दिया को जाए। पता था कि ईमान नहीं लाएँगे ना, हाँ जी। उन्हें उनको अल्लाह के पता नबी था, हाँ जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये था उम्मीद के कि कोई तो इनके खानदानों में से ईमान हाँ लाएगा जी, ना, बाद में जैसे ताइफ कोई ना वालों ने। कोई तो होगा, हाँ जी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये जहालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ना, कि फरमा रहे हैं कि ये जाहिल हैं, ये जहालत के बिना पर अजाब मांग रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि मुतालबा ये कर क्या रहे हैं। यानी जहालत की बिना पर लोग क्या जी, कुछ नहीं मांगते, आज भी होता है। जी। जब इंसान जाहिल होता है ना, तो बहुत डिमांडिंग आता है। ये मैं उल्टी-सीधी बात है, उल्टी-सीधी बात मैं है। एक जहालत में इंसान इकट्ठा भी बड़ी दुनिया करता है, दुनिया को भी बड़ा इकट्ठा करके रखता है। मैं बताऊं कि एक मेरी जहालत के जमाने का, मैंने डबल सेट लिया हुआ है बर्तनों का। तो मैं जमाना जाहिलियत का उसको कहती हूँ, कि मैंने अपने शोहर की कमाई का वो हिस्सा जाया कर दिया। अब मुझे बहुत पछतावा, अब मेरी बहू मेरी बेटियों किसी ने नहीं उनको लिया, सभी ने रिजेक्ट कर दिया। और हमें नहीं मैंने चाहिए, हाँ इतना जी। महंगा, वो पहला और आखिरी सेट था जो मैंने महंगा इतना लिया था, और डबल अच्छा। सेट लिया था, हुँ। हाँ क्योंकि जी, पहले-पहले होता था ना कि न बस लेकिन मैं ज़्यादा उस कर लो ना, हाँ जी, हाँ, ज़्यादा मेहमान आपने आएँगे तो भी एक जैसे बर्तन होंगे तो अच्छा लगेगा, ये होगा, लेकिन वो होगा। मैंने लिया था कि आधा-आधा दोनों बेटियों को दे दूँगी जहेज़ ओह! में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हाँ। ज़माना जाहिलियत का मेरा अंदाज़ था। ये तो हम कर लेकिन देते हैं ऐसी गलतियाँ, वो हाँ, बड़ा लेकिन हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं सोचती थी कि उसे निकाल के तो अल्लाह के रास्ते में कुछ करूँ उसके लिए। क्योंकि बड़ा सेट है, इतना खूबसूरत है, लेकिन अब क्योंकि ज़माना नहीं है तो लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया कि दुनिया जमा कर रही थी तू। वो मुझे एक ना रिग्रेट होता है। हुँ। जब भी मैं सोचती हूँ उसके बारे, तो एक होता है, "ऐ अल्लाह, मैं इतनी जाहिल थी। मैं अपने शोहर की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा ज़ाया कर दिया, जो कि अभी तक पड़ा हुआ है, जो किसी काम नहीं आया।" अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए और हम सबको ऐसी जहालतों पर आमीन, माफ़ फ़रमाए। तो आमीन। ये जहालत में इंसान बड़ा कुछ कर जाता है, जब पता नहीं होता ना, जी, तो जहालत बहुत बुरी चीज़ है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया ना कि दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, है। जैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना कि उनको हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क पता चल जाए, और सही और गलत यानी बातिल और इस्लाम में सही गलत में तमीज़ आ जाए, और वो अपनी इबादत अल्लाह के हुक्मों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक सही तरीके से करने लगे। यानी उससे जहालत के वो काम खत्म हो जाए, वो आदतें खत्म हो जाए उससे। इतना नूर उसमें आना चाहिए। हर मर्द मुसलमान और औरत मुसलमान पर फर्ज है ये। हमने अपनी औलादों को किधर लगा दिया? क्या ये फर्ज खुद निभाया?
नहीं बाजी, क्या नहीं जहालत क्या जहालत हमने में फिर जब हम हमने खुद खुद ही ही जहालत छुपाया में थे, तो हाँ खुद ही जहालत में थे, तो खुद हाँ जी। नहीं, मैं जी अपने बच्चों को ये कहती होती हूँ कि देखो वे बच्चे, बेटियों को भी बेटे को भी, जब मैं कोई काम ऐसा हुआ हो ना मुझसे जो कि जी, मेरे बच्चों में अब हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसान होता है, मुबल्लिग हाँ जी। होता है अपने हाँ बच्चों का। जी, बच्चे देख के करते हैं, बच्चे सुन के नहीं करते। माँ नहीं बाप करते, हाँ जी, देख के करते माँ हैं। बाप की सुनते नहीं होते बच्चे, जो कुछ मर्जी कहते हैं, बच्चे देख के करते हैं। जी, बच्चों के लिए माँ बाप और घर वाले रोल मॉडल होते हैं, वो देख के करते हैं काम। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, तो जो कार्टूनों में रोल मॉडल उनका हो उसी को फॉलो करते हैं ना। जी, तो इस तरह बच्चे, अगर वो लड़के जो हैं वो बैटमैन और पता नहीं अब तो क्या क्या है, तो वो देखते हैं तो वो भी ऐसे ही हरकतें करते हैं, उछल कूद उनकी तरह ही करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक माँ अपने बच्चे के लिए खामोश मुबल्लिग होती है। वो खामोशी से अपनी सारी आदतें उनमें डाल रही होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कर क्या रही है। अगर वो घंटों टीवी देखती है तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली उधर जाएंगे। अगर माँ घंटों लोगों की चुगलियां करती है फोन के ऊपर, तो बच्चे भी ये काम करेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है माँ करती है। माँ झूठ बोलती है तो बच्चे भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी ने कहा ना कि भी इसी जमाने में हमारे बच्चे जो हैं, किसी ने फोन किया कि सहेली ने, माँ की ने किसी बच्चे की माँ को, तो वो फोन पे यानी कि घर पे ही थी, तो माँ कहने लगी कि उसे आंटी को कह दो कि मेरी अम्मी घर पे नहीं है। आप सोच सकते हैं बच्चे ने क्या कहा? ये अम्मी कहती है कि मैं आंटी मेरी आंटी का अम्मी घर कहती पे है कि मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे नहीं। ठीक है? क्योंकि बच्चे हाँ जी, मासूम होते हैं। हाँ जी। तो जे कुछ जहालत की मिसालें हम ये ना देखे सोचे कि जहालत उधर ही थी, उनमें ही थी, हम में नहीं है। हाँ, है, हम भी है, हाँ जी। जहालत अब भी बाकी है। अभी बहुत बाकी है, हाँ जी। ज़माना वो बदल गया, लेकिन जहालत अब भी बाकी है। डिफरेंट तरीके की है, मुख्तलिफ तरीके की। जी, तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें जहालतों से बचाए और आमीन। तमाम जहालतों से निकाल कर रोशनी की तरफ, उस नूर की तरफ अल्लाह ताला लाए, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। और उसके नूर की मिसाल अल्लाह फिर देते हैं। अल्लाह ताला इस कुरान के नूर की तरफ, कुरान को भी नूर कहा गया ना, जी, इस्लाम को भी जी, नूर कहा गया, इसकी तरफ अल्लाह ताला हमें ला दे। आमीन, हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना जे इस्लाम बन जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बन जाए, आमीन, कुरान बन जाए। आमीन। और ये मुश्किल नहीं है। जितना जितना मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा है, जितना जितना इस्लाम जिंदगी में आता जाता है, उतनी उतनी जिंदगी आसान होती जाती है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस्लाम जितना आसान दीन है ना, कोई जी, और अदियान में से कोई दीन आसान नहीं है जी, जितना इस्लाम आसान है। इसके ऊपर अमल करना आसान है, क्योंकि ये नेचर का दीन है, ये पूरी कायनात का दीन है, ये मेरे दिल में रखे हुए नफ्स का दीन है। मैं उसको भड़काती हूँ फिर। इसलिए इस दीन के ऊपर, क्योंकि ये तो वैसे भी क़यामत तक तक के लिए ये दीन है ना आया, जी, जी, तो इसलिए ये दीन मुश्किल कैसे हो सकता है जो क़यामत तक बाकी रहना है। ये दीन मुश्किल नहीं है। हमने मुश्किलात बढ़ाई हुई हैं अपने दीन में इजाफे कर करके, बिदआत पैदा करके, रसूमात पैदा कर करके। हमने अपने दीन को इतना मुश्किल कर दिया कि जिसके ऊपर अमल करना मुश्किल हो रहा है। जिस दीन पे अमल करने के लिए, जिसको दीन समझते हुए लोग एक एक शादी में 60-60 70-70 हजार पाउंड बैंकों से लेकर शादियों पर लगा देते हैं। ये जहालत की हद नहीं तो और क्या है। तो दीन के नाम पर निकाह होता है, लेकिन बाकी सब बेदीनी की बातें होती हैं। काम बाकी सब वो दूसरे ही होते हैं, बेदीनों वाले। तो हम जहालत में हमने अपने आप को परखना है। मैं अपने आप को परखने बैठी हूँ। एक एक अपनी बुराई की तरफ, दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे हम। दूसरे में क्या है नहीं जी, देखेंगे।
किसकी अपने में तरफ हमने देख देखना अपने है? में देखें, हाँ अपने जी। 5-6 फुट के जिस्म में देखें। जी, मुझ में अभी क्या बुराई है? वो उस्ताज़ा साहबा उस दिन क्या कह रहे थे एक दिन ना, एक-एक बुराई को लेना है, उसके मतल्लक सोचना है और अल्लाह से दुआ करनी है। जी, एक-एक अपनी जो गलती की है ज़माने में, रहते हुए इतनी ज़िंदगी गुज़ारते हुए उस गुनाह को सामने लाएँ अपनी नज़रों के। उसके मुतालिक अच्छी तरह सोचें और उस गुनाह पर फिर अल्लाह से गिड़गिड़ाएँ कि अल्लाह वो फलाने वक़्त में मैंने फलाँ गुनाह किया था। अल्लाह मुझे याद है, तू मुझे माफ़ फरमा दे, मैं माफ़ी माँगती हूँ इसकी भी। तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फलाँ बंदे के हक़ में मैंने गुस्ताखी की थी, फलाँ बंदे का हक़ मारा था, फलाँ वक़्त में ए अल्लाह जी, मैंने फलाँ जानवर को ये सज़ा दी थी, ये फलाँ जानवर को मारा था। फिर वो वाक़यात देखे हैं कैसे ही नहीं हमारी ज़िंदगियों में हमारे ज़हनों में घूमते और फिर क्यों हम ना माफ़ी माँगे अल्लाह से। ये तो रमज़ान का महीना है, माफ़ियों का महीना है। जी, एक-एक गुनाह को तो फिर क्या जब हम अपने गुनाहों की तरफ देख-देख कर, रो-रो कर, उन्हें सोच-सोच कर माफ़ी माँगने लगे तो दूसरों के गुनाह हमें नज़र आएँगे? नहीं, दूसरे के बुराइयाँ देखने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। नहीं जी, मिलेगा, हाँ। वो सारे हमें पाक-साफ लगेंगे, गुनाहों की पोटली मैं खुद लगूँगी मुझे अपने आप को। हुँ, ये अमल के नुक्ते हैं हमारे लिए। हम सोचते हैं जहालत चली गई हुई है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, जहालत चली गई थी। उस वक़्त गई थी, फिर आ गई है। फिर आ गए। ज़माना फिर बदल गया, उसी अपने असल की तरफ लौट रहा है ज़माना, जहालत फिर बढ़ रही है। बेशक इन्फॉर्मेशन बहुत है, इन्फॉर्मेशन से तो आपकी फिंगर टिप के नीचे पूरा हुँ, इस्लाम है। एक फिंगर टिप आप इस्तेमाल करें तो पूरा इस्लाम है नीचे। जी, लेकिन क्या उसमें से ठीक है, क्या गलत है, ये नहीं पता। जी, ये नहीं हम पता। पहचान नहीं कर सकते हुँ, जब तक कोई ऊपर हमें बताने वाला ना हो। जी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद बनाकर भेजे गए थे, मुअल्लम बनाकर भेजे गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने सिखाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाया इस्लाम। तो इस तरह हम तक पहुंचा। हम तो वो थोड़ा सा ही कहते हैं कि बस इतने की दीन पे जितना है उतने उसके ऊपर अमल हो जाए तो हम बस छुटकारे में हैं। बाकी दीन के ऊपर अमल करने की जब पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमल करना पड़ेगा। अमल जवाब तो फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि कुरान हमारे हाथों में आ गया। जी, जवाबदही तो है ही, बड़ी कड़ी जवाबदही है। हमारे घरों में इतने इतने कुरान पड़े हैं, कई लोग इतनी जहालत में फिर कहते हैं ये देखो ना ये कुरान जो है मैं कभी नहीं पढ़ती, इनको खोलती नहीं हूँ तो बस अल्लाह ताला नाराज होगा। ये कुरान मैं हर रोज पढ़ती हूँ, बाकी को मैं दे देती हूँ, मस्जिद में रख देते हैं और मस्जिद में ढेर ढेर आके पड़े हुए हैं कुरान। क्या ये हाल है? मैंने बताया था ना कि मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की मैंने वीडियो के बारे में बताया था, जी, जी, वायरल बताया हुई हाँ। थी। हाँ तो जी, इसी में रमजान में कि हर गली में, बंदे हर कोची में, हर रोड पर, हर कोने पर लोग जिधर-जिधर भी जिस जगह पे भी हैं, कुरान उनके हाथों में है, बच्चों के, बड़ों के। जी, कोई किसी को पता नहीं है कौन साथ में बैठा है। बस के इंतजार में है तो कुरान हाथ में लिए पढ़ रहे हैं। ये है ताल्लुक कुरान के साथ। ये होना चाहिए हमारे साथ कुरान के साथ हमारा ताल्लुक। लेकिन हम कहते हैं कुरान को ऊँची जगह पे अच्छी तरह सजाई हुई जलदान में डाल के और ऊपर वाले पीछा ना हो हमारा। हम इज्जत देते हैं इस एक इंस्ट्रक्शन बुक को जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगियां गुजारने के लिए भेजी थी। इसको पढ़े, इसको समझे और इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारें। और हमने क्या किया, उसको सजा के कहते हैं ना, किसी ने खूब ही वो शेर लिखे हैं, जिंदों की किताब थी, मुर्दों की बना दिया। ऐसा ही था ना, ऐसा ही हुआ है ना।
जी, जिंदा के लिए किताब जिंदा के लिए आई थी कि हाँ जी, जिंदा लोग जो है इसे वो पढ़े, हाँ जी, इसको पढ़ें समझे, और अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक समझे, हाँ गुजारें। जी। लेकिन हमने मुर्दा के ऊपर पढ़ने की किताब बना दिया बहुत होने कि होता है जब वो कोई पढ़े, हाँ फौत जी। होगा तो पढ़ेंगे। जहाँ हमारे घरों में बरकतें हाँ, रहे। कई इतना भी मैंने सुना है कि लोग क्या करते हैं। अब हमारा ये मौजू हट गया है लेकिन मैं जहालत के ऊपर बात कर रही हूँ जी, कि लोग जो हैं कहते हैं घरों में बरकत रहेगी, शैतान भागा रहेगा। तिलावत लगा के आप खुद सो जाते हैं। सूरत हुँ, बकरा लगा के, सूरत आल इमरान लगा के आप खुद सो जाते हैं। आप कामों में लगे रहते हैं और उनको कोई नहीं सुन रहा होता, लेकिन घर सुन रहा होता है। दरो दीवार सुन रहे होते हैं जो हमारे खिलाफ फिर गवाही देंगे। देंगे सही कि बात नहीं? है। जी, कुरान का कोई मजाक है जी? हुँ, कुरान मजाक वाली किताब तो नहीं है। तो आज मुसलमानों ने उसको मजाक की किताब बना दिया। अपने आप को बहुत हम अक्लमंद समझते हैं। जी, अपना हम जरा भी टाइम नहीं जाया करना चाहते कि उस किताब को जिसको लगाया है बैठ के सुन ही ले, उसके ऊपर तवज्जो ही दे दे। हम बहुत बिजी हैं। तो ये जहालत नहीं है। उनकी जहालत के क्या कहने जो गुजर चुके हैं, हमारी जहालत की तरफ हम देखें। मैं अपनी जहालत की तरफ देखूं, आप अपनी जहालत की तरफ देखें। अभी अभी कौन से काम अभी हमारे जाहलों वाले हैं, कौन से कामों में हमारी रस्में इस्लाम वाली हैं, कौन से कामों में हमारी जो रस्में हैं वो जहालत वाली हैं। वो उन जाहिल कौमों की तरह है, मुशरिक कौमों की तरह है, जिनमें हम रहते रहे हैं और जिनमें हम आके बस गए। माओ की तो मेहंदी और उपटन थी, लड़कियों की क्या होगी, हैन नाइट होगी, बेबी शावर हो गया, बदल गए। बच्चों ने इनकी ले ली, हमने पीछे वो दूसरे जो मुशरिक कौम के साथ रहते रहे उनकी ले ली। हम किसी के नहीं किसी को नहीं छोड़ते, हम सभी की रस्मों को अपनाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। क्या ही गिननी है जी हमारी जहालतें, आज हम सब जहालत में पड़े हुए हैं। हमें इस सोने चांदी से जिसको छुपा छुपा कर रखते हैं कि चोर ना ले जाए, किसी को पता ना चल जाए कि मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने पैसे हैं। हमने उससे उनसे सस्ती इस किताब को बना दिया, जिसकी कोई कदर नहीं है, सिवाय इसको संभाल के रखने के, सिवाय इसके पीछे इसको पीछा ना किया जाए, सिवाय कि जब हमारा कोई मर जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे पढ़ देंगे मुझ पर, वो पढ़ा देंगे। वो फिर गिनते हैं कि हमने इतने कुरान पढ़ा दिए हैं। मस्जिदों में ऐलान किया जाता है कि इतने कुरान इसके लिए पढ़े गए हैं। सुभान अल्लाह। किधर अल्लाह ताला ने भेजा है उम्मत को, दूसरों को दीन देने के लिए, और किधर ये खुद ही गुमराह होके रह गई, ये खुद ही उन भुलभुलैयों में पड़ गई। और हम मगन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान में, हम पढ़ के आए कि जिसको दीन का जो टुकड़ा दिया गया है, जिसको फिरके ने अपने फिरके का जो टुकड़ा दिया है, उधर फिरकों की बात हो रही थी ना, वो उसमें अपने उस हिस्से में मगन है और उस पर बहुत खुश है कि मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और सही इल्म दे और हाँ उस जी, पर अमल भी करने वाला बना दे, वरना छुटकारा नहीं है। याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछेंगे और आगे आने वाली नस्लों को, और जो नस्लें हमने जहां लाकर आबाद कर दी उनको तो हम गैर मुस्लिमों के हवाले कर ही चुके हैं। वो तो उनकी हो ही गई है। उन्हें उनके बारे में कोई फिक्र नहीं है लाहिक कि इनको सीधा करना है, अपनी तरफ लाना है, मल्टीकल्चरल बनाना है। उन्हें वो पता है कि वो तो हमारे ही हैं। असल में उन्हें फ़िक्र किसकी है? ये जो चंद अभी रह गए हैं उर्दू स्पीकर और दूसरी ज़बानों के स्पीकर, मुसलमान, उनकी फ़िक्र है कि उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। उनका भी मल्टीकल्चरल सोसाइटी लेके आके उनको भी कहा जाए कि जिस सोसाइटी में रहते हूँ, उन्हीं का हमें अपनाना पड़ेगा। उनको हमें मानना पड़ेगा, उनके रस्म-ओ-रिवाज को मानना पड़ेगा, उनके तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तो जी फिर हम हैं आज खड़े। क्या बातें हैं जहालत की, क्या पढ़ते हैं हम। उनकी क्या जहालत थी, कुछ भी तो नहीं थी। वो तो कुछ भी नहीं थी हमारे आगे। आज जहालत तो हमारी है, जिसके क्या कहने।
हम उसको दीन समझकर, स्वाब समझकर उसके ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और हम देख रहे हैं कि किस तरह ये हमारे तौर तरीके जो हैं कुरान और सुन्नत से और हदीस से हटे हुए हैं। आज कुरान कोई नाज़िल कोई और किताब नाज़िल हो रही होती तो हमारे मुसलमानों का भी जैसे पहली कौमों का पोल अल्लाह ताला ने खोल-खोल के रख दिया, उनके दिलों की बातें, आज मुसलमानों को अल्लाह ताला छोड़ता है? ये तो हमारी इज़्ज़त है, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है। ये तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आखिरी नबी खातमुल अंबिया आ गए, जिस पर नबूवत भी खत्म, जिस पर शरीयत भी खत्म, और हमें छुपे रहने दिया अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को। ये तो इज्जत है। अल्लाह ताला हमें इस इज्जत में इसको पहचान कर बेइज्जत नहीं क़यामत वाले दिन बल्कि इज्जत वाला होने वाला बना दिया। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आगे हम बढ़ते हैं, मेरा ख्याल इस टॉपिक के बाद खत्म करते हैं। आज मुझे जहालत के ऊपर पता नहीं कहाँ से मेरे ज़हन चला गया इधर की उधर, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। ज़हन अच्छा। ऐसे नहीं जाता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल मेरे ज़हन में जो हुँ, बात आ रही होती है ना, मैं सोचती हूँ कि अभी मैं इसको सब कुछ लिख मारूँ, लिख डालूँ इसको, क्या-क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इस कुरान का हक़ अदा कर सकें, और वो मुहसिन इंसानियत जो पैगम्बर इनकलाब बनकर आए, जो इंसान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़कर, उनकी सीरत पढ़कर, उनके अखलाक को पढ़कर हम अपनी ज़िंदगियों में ला सकें। क्या ही 12 रबीउल अव्वल के दिन, एक दिन में हम बहुत मोहब्बत का दावा कर लेते हैं और सारा साल हम उसके उल्ट काम करते हैं। क्या वो मोहब्बत का दावा क़यामत वाले दिन हमें सच्चा साबित होने देगा? नहीं। क्या अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ, आपने कहा था एक दिन साल में कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जब जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ लिया था और सारा सारा हफ्ता उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्वाए हुस्ना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बेहतरीन नमूना है, इनको फॉलो करें। और हमें फुर्सत नहीं मिलती पता करने की भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना कैसे थे हमारे लिए, क्या क्या वो सह के गए हैं, क्या क्या वो तड़प के गए हैं हमारे लिए दुनिया से। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए। तो जी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दरअसल आप जानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि क्रैश के ये मुतालबात जहालत की बिना पर है, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजा जाना तो दरअसल मखलूक का इम्तिहान होता है, ताकि वो रसूलों की तस्दीक करे और रब ताला की इबादत करे। पता चल गया हमारी जिंदगी का मकसद। जी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी हूँ। दिन की सरफराजी है हमारी जिंदगी का मकसद। अल्लाह ताला यानी कि किस तरह हमें मखलूक का इम्तिहान होता है रसूल का आना, कि वो क्या रसूलों को सच्चा मानते हैं। आज हमने सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी मोहब्बत के दावे ही कर रखे हैं, जो हम कहते हैं ना फोकी फोकी ऊपर से पंजाबी में बोलते हैं, जी। वो असल में अंदर से भी पता नहीं है कि वो क्या करके गए हैं और क्या तड़प के गए हैं हमारे लिए, और कुरान क्या कह रहा है हमें। एक-एक बात में कुरान की कैसे अल्लाह ताला जोड़ते हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका अपनाओ। मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया था कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो, जो कि मुशरिक नहीं थे। ना वो यहूदी थे, ना वो नसरानी थे। वो मुशरिक नहीं थे। वो तो हनीफ मुसलमान थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जो हमने पढ़ा पीछे। जी। तो जहाँ पे हम कुरान को दोहरा रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते-फिरते कुरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है वो कुरान था। कुरान गवाही दे रहा है अल्लाह के नबी के अखलाक की।
और हम कहते हैं कि पता ही नहीं है क्या था। किस वक्त अल्लाह के नबी जागते, कब जागते, क्या पढ़ते, जब सोते, पढ़ते, बाहर जाते तो क्या पढ़ते, टॉयलेट जाते क्या करते, ही करना चाहिए। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बताते, और हम कहते हैं कि बस हम अमल कर रहे हैं इस्लाम पर, इतना ही काफी है कि 5 वक्त की नमाज का सजदा दे दिया, ज़कात अदा कर दी साल के बाद, एक जिंदगी में हज कर आए। बस ये नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में पूरे का पूरा दीन आ जाता है। यानी मैं देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब उन्होंने अल्लाह के रसूल मान लिया, अल्लाह को वाहदुल ला शरीक मान लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उस माबूद का कहा फिर किसने मानना है? हम नहीं मानना है ना, जिसको माना है। उस रसूल की इत्तबा किसने करनी है? जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया। यानी रुसल क्या होता है? पैगाम रसां, पैगाम भेजे, जिसको पैगाम देकर भेजा गया, तो उसका कहा फिर किसने मानना है? पैगाम जिसकी तरफ आया उसी ने मानना है ना। हमारी मम्मी हाँ तरफ वो जी। पैगाम जी, आया, हमारे घरों में पैगाम मौजूद है। जी, अपनी जिंदगियों को इस तरफ लाना है जी, इंशाल्लाह। जो जिंदगियां बाकी रह गई हैं, कोई पता नहीं, पानी का बुलबुला जी कब बुझ जाए, कोई पता नहीं, जी, कब इस गुब्बारे से हवा निकल जाए, कोई पता नहीं। लेकिन जो सांस बाकी है, ढूंढे अल्लाह का दीन, सच्चा दीन। इंटरनेट पे जाकर वो उंगलियां मारने वाला दीन नहीं, जो हमें नहीं बताता कि ये कादियानी का आपको फतवा सामने आ गया है, जाके जी, मुसलमान का आया है, शिया मजहब का आ गया है, या मुसलमान सुन्नी का आया है, आपको नहीं पता लगता। वो तो सामने दे देते हैं, ये लो, इसका मतलब जी, ये है, इसकी ये बता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। मम्मी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि सोचा कि ये जहालत के बिना पर है, और तस्दीक करने वाले रसूलों की और रब की इबादत करने वाले इंसानों का इम्तिहान के लिए रसूल आते हैं और शरीयत आती है। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आंखों से सब कुछ देख ले, तो फिर तो अंबिया और रसूलों को भेजने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। हुँ, आसमान के दरवाजे खुल जाएं, जो कि क़यामत वाले दिन खुलेंगे, और आसमान की दुनिया ऊपर से नजर आ रही होगी, छत नहीं रहेगी ना ऊपर हमारे, कोई सामने नहीं, सब कुछ सामने नजर आ रहे होगा। और सोचे अब अगर सारी दुनिया, आसमान सात है ना, हम मानते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कुरान में, तो सातों आसमानों में इतनी फरिश्तों की तादाद है कि कहते हैं उंगली रखने की जगह नहीं है, एक उंगली रखने की जगह बाकी नहीं है आसमानों में। इतनी तादाद है फरिश्तों की जो अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं। और किसी छोटे बच्चे को भी आज पूछे ना कि हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं, मैंने अपनी पोतियों से पूछा कल, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहने लगी कि अल्लाह ताला को जो खुश करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए अल्लाह ने कहा है। मैंने कहा कि हाँ, अल्लाह ने कहा है, लेकिन हम हम जन्नत सिर्फ हासिल करने के लिए ये नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं पढ़ते, हम नमाज अपने लिए पढ़ते हैं, अपने आप को जहन्नम से आजादी दिलाने के लिए, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा या बंदी बनने के लिए, अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए, अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए, ये बहुत सारी वजूहात हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मैं नमाज अपने लिए पढ़ती हूँ ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं, अल्लाह का हुक्म मानकर तकवा इख्तियार कर लूं। नमाज तकवा देती है, नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज में इंसान अल्लाह के करीब आ जाता है, वो गलत काम पीछे रह जाते हैं थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उनको छोड़ देता है। चोरी करने वाला भी जब नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो उस वक्त
नमाज की चोरी के अलावा वो चोरी नहीं कोई और कर सकता, क्योंकि नमाज में भी चोरी होती है ना, नमाज में भी चोरी होती है। ये किसी और दिन की बात है, फिर करेंगे। जब नमाज का हम कर रहे थे ना, उसी चैप्टर में जाएगा रमजान के बाद इंशाल्लाह, जो हम नमाज के मसाइल कर रहे थे उसी में, कि नमाज की चोरी क्या होती है। तो ये फिर अगर अल्लाह ताला सब कुछ सामने दिखा देता तो गायब पर ईमान लाने का फिर तो कुछ रहता ही ना। हम तो गायब पर ईमान लाते हैं, हम तो माने मुजमल माने मुफस्सल पढ़ते आए हैं, ऐसा ही है ना। हम तो वो कौम है जिन्हें बचपन में वो रटाए जाते हैं, हाँ, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल हम कहते हैं, ये रटाने हैं बच्चे को, ये आने जी, चाहिए बच्चे को, हाँ लेकिन जी। कभी नहीं हमने सोचा कि उनके मतलब भी बता दें कि क्या है, हुँ, ताकि हमारा बच्चा तौहीद पर उसी वक्त कारबंद हो जाए। अगर काश के हम उसको उनको उस वक्त मतलब भी बता देते होते। तो ये जब सामने सब कुछ नजर आ जाए तो फिर इंसान का इम्तिहान नहीं रहता। सामने पेपर का जवाबात पड़े हैं तो पेपर पे लिखने का कोई फिर फायदा होगा? जवाब तो सामने है सारे, और वो तो फिर है। हमसे कहा जाए कि ये पेपर लिख दो, हाँ, है ना? तो हुँ, क्या फिर लिखेंगे? फिर वो पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? उसे ये होगा जवाब तो उसके सामने थे, अब मैं क्या पढूं? हाँ उसने जी, ठीक ही लिखा जी, होगा। जी। हम्म। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की ये हिकमतें हैं हमारे लिए, क्योंकि दो मखलूकात का इम्तिहान है। कौन सी हैं वो दो? या माशरल जिन्नी वल इंसी जी, इन इस्तताअतुम अन तंफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुजू ला तंफुजूना इल्ला बिसुल्तान। हुँ, ये है जहां अल्लाह ताला ने फरमाया दोनों से इम्तिहान है। हुँ, ए इंसानों, गुरूह इंसो जिन, अगर आसमान के किनारों पर से भाग सकते हो तो भाग के दिखा दो। यानी हुँ, अल्लाह की गिरफ्त से भाग सकते हो, अल्लाह की हदूद से बाहर जा सकते हो तो जाके दिखा बिल्कुल, दो। हुँ, नहीं तुम जा सकोगे जहां तक कि अल्लाह तुम्हें ताकत ना दे दे। हुँ, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आमीन। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये हमारे इम्तिहान का पर्चा है। हर दुनिया की हर नेमत इम्तिहान का पर्चा है, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, हर रिश्ता इम्तिहान का पर्चा है हमारे लिए। हाँ हर जी, वक्त का एक एक लम्हा इम्तिहान का पर्चा है हमारे लिए, हुँ, जिसके बारे में हमसे जवाबदेही है, जिसका हमने जवाब लिख के जाना है इस दुनिया से, ताकि वहां पे जाके रिजल्ट आउट हो सके। क्योंकि वो तो रिजल्ट आउट होने का दिन है, वो तो हुँ, नामा माल हाथ में दिए जाने का दिन है। आज कितनी भूल भुलैयों में दुनिया के बेवकूफ इतना भी अस्तगफिरुल्लाह कह देते हैं। अभी तो दुनिया से तो निपट ले, दुनिया में तो हैं, दुनिया के तो उनका तो खुश कर ले। जब क्यामत आएगी तो देखा देखा जाएगा, जाएगा। हाँ जी, वहां देखा नहीं जाएगा, वहां भुगता जाएगा। वो भुगतने का दिन है, वो यौमुद्दीन है, बदले का दिन है वो, भुगतने का दिन है नहीं है। वो यौम इम्तिहान नहीं है, वो यौमुद्दीन है। हुँ, तो ये आज हम अपना ईमान भी पक्का कर लें, अच्छी तरह बांध लें कि ये जिंदगी टेस्ट है, ये इम्तिहान का कमरा है। इससे बाहर निकलते ही इम्तिहान खत्म, इम्तिहान का वक्त खत्म। फिर तो वो इंतजार है। कब्र की जिंदगी क्या है? इंतजार है रिजल्ट आउट होने का। बच्चे इम्तिहान देते हैं तो क्या करते हैं फिर? इंतजार करते हैं ना रिजल्ट के हाँ दिन का। जी, हाँ जी, जी, करते हैं बड़े दे इम्तिहान किसी चीज का, जब बच्चे दे, यही जी, होता जी, माँ-बाप भी करते हैं सिस्टर है साथ। ना? तो ये इम्तिहान के कमरे से बाहर यूं ही निकले, बरज़ख की जिंदगी में गए, इम्तिहान के रिजल्ट आउट होने का इंतजार, टाइम होगा वो, जब तक के क्यामत की घड़ी आ ना जाए और नामाईमाल हाथ में दिए न जाए। सूरत इंशिकाक जाके पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों के नामाईमाल दाएं हाथ में दिए गए, वो तो खुशो खुर्म अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे और कहेंगे, ये देखो मेरे नामाईमाल मुझे दाएं हाथ में दिए गए।
ये देखो पढ़ लो। एक मिनट। सॉरी, कोई बात नहीं। वापस आ गई। इंशाल्लाह ताला। आपको पता ही है कि मैं क्यों गई थी। जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सिस्टर आप बंद कर दे, आप उनके पास बैठे बातें सुने जाके। कोई बात नहीं। मक्के के मशरकीन ने दो, जे हम खत्म करेंगे इसे। जी मक्का के मशरकीन ने दो यहूदी आलमों के पास अपने आदमी भेजे, यानी कि अब उन्हें तशवीश हुई थोड़ी सी। अपने आदमी भेजते हैं मक्के के मशरक जो है मदीने में यहूदी आलमों के पास। दोनों कासदों ने यहूदी आलमों से मुलाकात की और इनसे कहा, ये सूरत कहफ की आयतें नाजिल होने से पहले की बात है। उसका जवाब थी सूरत कहफ। हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है। उसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलम बोले, हमें उसका हुलिया बताओ। कासदों ने आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? यानी जी कि टेस्ट था अब उनका, क्योंकि हाँ जी उनकी उनके किताबों में था ना कि जी कौन कैसे दर्जे के लोग उनकी पैरवी करेंगे। रसूलों की पैरवी हमेशा किसने की है पहले? रिबन कौन ईमान लाते रहे? तो वो कहने लगे, कम दर्जे के लोगों ने, यानी गुलामों ने, हाँ बच्चों ने, जी औरतों ने, यानी कम कि परसेंट। जिनका हमारे करीब कोई दर्जा नहीं है इतना। उन्होंने अब उन्होंने कहा, तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। अगर उन्होंने इन 3 सवालात के जवाबात दे दिए, तो वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर जवाब ना दे सके, तो फिर समझ लेना वो कोई झूठा शख्स है। हम्म, ये 3 सवालात हमारे सामने फिर आते हैं एक सूरत की शक्ल में। तो वो क्या थे? पहले उनसे उन नौजवानों के बारे में सवाल करो, जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में। जी अच्छा। कि पूछो कि उनका क्या वाकया था, क्यों वो निकल गए थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सदियों पुराने ज़माने में थोड़े थे। जी जी। ये तो एक कोई नबी ही फिर बता सकता है ना। हाँ जी उस पर फिर वही नाज़िल होगी, उस पर आएगा फरिश्ता, वो फिर जाके बताएगा। या जी तो ये एक टेस्ट करने का एक सवाल नंबर 1। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा कहा? कि इसलिए कि उनका वाकया नहायत अजीबो-गरीब है। उन साहब कहफ का। हमारी हुँ, पुरानी किताबों के अलावा इस वाकया का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ यहूदियों की किताबों में ही है वो जिक्र। हम्म, अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, यानी अल्लाह उन्हें इत्तला बता- दे देगा, दे वरना देगा। नहीं बता सकेंगे। सवाल नंबर 2, फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर, ये सिकंदर इन्होंने लिखा है, वो सिकंदर नहीं थे। जी उनके नाम के साथ सिकंदर नहीं था। ये कुछ उलमा इकराम ने इनकी तफसीर में सिकंदर कहा, हालांकि कहा जाता है कि सिकंदर जो था ना, वो मुसलमान नहीं था। वल्लाहु हम्म, आलम। वो नहीं, वो क्या सिकंदर नहीं, उसका क्या नाम है ये, ए, एक गोरों का जो था, उसका नाम मुझे अब याद भूल गया। उसके बारे में कहा जाता था। तो जिस सिकंदर को भी सिकंदर नहीं, उसमें जुल्करनैन जो है वो उनका हमने पढ़ा सूरत कहफ में। हाँ जी अल्लाह को हुँ, मानने वाले इतने वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसले करने वाले थे, तो कहाँ वो सिकंदर और कहाँ वो। हाँ जी
तो जुल्करनैन कौन था, उसका वाकया क्या है, किस्सा क्या है, फिर उनसे रूह के बारे में पूछना। तीसरा सवाल क्या है, रूह क्या, हाँ जी। रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज है। हम्म, अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाकया बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया, तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। हम्म, इस सूरत में उन उन तुम उनकी पैरवी करना, यानी फिर कह दिया कि पैरवी कर लेना। फिर जी। ये लोग 3 सवालात लेकर वापस मक्के आए और क्रैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म, मोहम्मद के दरमियान कहते हैं फैसला हो जाएगा, अगर वो हाँ सच्चा जी। है कि नहीं। हम्म, इसके बाद उन्होंने इन सब को तफसील बताई, यानी अपने लोगों को। अब जो मुशरिकीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए डिमांड लेकर। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात दे दें। हम्म, हमारा पहला सवाल कि साहब कहफ कौन थे, दूसरा सवाल कि जुल्करनैन कौन थे, तीसरा सवाल कि रूह क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। हम्म, तो क्या कुछ जो बहनें मेरे साथ थी पूरे कुरान में, क्या जवाब था, यानी कि कल दूंगा, क्या दूसरे दिन दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर वही का इंतजार मिसिंग करना। मिसिंग क्या था, क्या मिस हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं कहा हाँ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि इंशाल्लाह। वसल्लम ने, कि अल्लाह ने चाहा तो मैं कल दूंगा। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन सवालात के जवाबात में कल दूंगा। अब हुआ हम्म, क्या, तो अब ही नहीं आई। वही नहीं आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाल्लाह ना फरमाया, हाँ जी। यानी ये ना फरमाया इंशा इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने तो तुम्हें कल जी। जवाब दूंगा। जी। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही वही का इंतजार करने लगे अब, जी। कि जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे, जी। लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग बातें, यानी कि जाहिर है कि वो फिर बातें करने लगते हैं, झूठा है हाँ इसलिए जी। देखो कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं जी। है बातें इसके करने पास में। लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई जवाब ना दे सके, वो लोग बातें करते हुए चले गए। उन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद के रब ने उन्हें छोड़ दिया, हम्म, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि नौजुबिल्लाह वो अबू लहब की बीवी जो थी उसने क्या कहा कि उम्मे जमील ने कि उसने ये तक के अल्फाज कह दिए कि मैं कहती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है। एक जगह जी। उसने आता है कि उसने कहा कि तुम्हारे शैतान ने तुझे छोड़ दिया, नौजुबिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को शैतान कहते थे और तुमसे नाराज हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रैश की ये बातें बहुत शाक गुजरी। शाक का क्या मतलब है, नागवार। बहुत दुख देने ना वाली, दुख बहुत देने नार वाली। गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरत कहफ लेकर नाजिल हुए। काफी दिन गुजर गए, तब आए थे। अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि उसको कल करूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लीजिए। तो हमारे लिए फिर अब क्या हुक्म है, यही हुक्म है। यही हुक्म है। हम कितना कहते हैं, मैं कल आऊंगी, मैं कल करूंगी, मैं कल दूंगी, मैं कल हाँ खाऊंगी, जी, मैं कल ऐसे ही लूंगी। करते हैं। ऐसा ही है ना, हाँ जी। कल कल कल, लेकिन इंशाल्लाह। अब रिवाज पता क्या हो गया है, जब काम ना करना हो तो इंशाल्लाह कहते हैं। इंशाल्लाह कहते हैं, हाँ जी सिस्टर। जब दिल में डाउट हो ना भी मैं ये काम नहीं करना, तो फिर कहते हैं इंशाल्लाह मैं करूंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आऊंगी, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। तो असल में दिल में खोट होती है। तो क्या सच्चे दिल के साथ इंशाल्लाह कहना है कि खोट के वाले दिल के साथ। सच्चे दिल के साथ, जब सच्चे दिल के काम साथ। करने का इरादा ना हो तो इंशाल्लाह मत कहना। हाँ जी। या फिर ये कह सकते हैं इंशाल्लाह मैं सोचूंगी इस मामले में। जी हाँ जी। फिर वादा नहीं है कि अल्लाह ने चाहा तो मैं सोचूंगी। इंशाल्लाह आपने बच्चों की जिंदगियों में भी लाए, आपने छोटे छोटे पोते पोते नवासे नवासियों की जिंदगियों में लाए। ये बताए कि इंशाल्लाह क्यों कहना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़ आ गई, वही नहीं आई। वही का सिलसिला 14 दिन तक बंद रहा। और फिर कुछ रवायात में आता है इतना टाइम
तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, जो कि हम सूरत कहफ में पढ़ के आए हैं, कि इंशाल्लाह कह दें, अल्लाह की सलाह कि अल्लाह के चाहने को मिला ले साथ में, यानी इंशाल्लाह कहा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए, यानी कि इंशाल्लाह कहना भूल गए हैं तो जब याद आए फौरन अपने रब का जिक्र करें, यानी इंशाल्लाह फिर मिला लें। और अल्लाह के आगे अल्लाह का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का जिक्र वहां पे फरमाया गया है, कुछ बताया नहीं गया कि क्या कहें, ठीक है। ठीक है। अब हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, क्योंकि जो वहां पे कुरान में भी हमने यही पढ़ा ना कि अल्लाह का जिक्र करें जी। जब भूल जाए तो। और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के लिए के इतबार से इससे भी नजदीक तर बात बता देगा। यानी तुम तो ये सिर्फ 3 सवाल पूछ कर मेरी नबूवत दलील बना रहे हो, मैं इससे भी बेहतर अगर अल्लाह चाहे तो बता देगा। सूरत कहफ जाके पढ़ लीजिएगा दोबारा। मतलब ये था कि जब आप ये कहें कि आइंदा फलां वक़्त में ये काम करूँगा तो उसके साथ इंशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अगर आप उस वक़्त अपनी बात के साथ इंशाल्लाह मिलाना भूल जाएँ तो बाद में याद आए तो उस वक़्त इंशाल्लाह कह दिया करें। इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर वो इंशाल्लाह कह देना भी ऐसा है जैसे गुफ्तगू के साथ कह देना होता है। ठीक है? ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब बिस्मिल्लाह पाना भूल जाए तो याद आए तो पढ़ लेनी चाहिए। इस मौके पर वही में देर इसी बिना पर हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाल्लाह नहीं कहा था। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरत कहफ लेकर आए तो पूरी की पूरी उतरी थी इकट्ठी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था, जिब्राइल तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से क्यों रुके रहे? उससे तशवीश पैदा होने लगी थी, यानी कि मुझे भी खुद एक होने लगा था डाउट। जवाब में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हम आपके रब के हुक्म के बगैर ना एक जमाने से दूसरे जमाने में दाखिल हो सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। कौन है ये? किनकी ये है ताकत? फरिश्तों की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आते। नहीं आते। हाँ जी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी हम आएंगे। हम तो सिर्फ उसके हुक्म पर ही अमल करते हैं, और क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको किसी और काम के लिए पैदा ही नहीं किया गया, वो उनमें ना रखी नहीं गई, इंसान और जिन्नात में ना रखी गई है, इसीलिए इन दोनों मखलूकात का हिसाब है। फरिश्तों का कोई हिसाब नहीं है, कोई और किसी मखलूक का हिसाब नहीं है। बस अगर किसी ने किसी पर जुल्म किया होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तक एक सींग वाली बकरी ने दूसरी सींग वाली बकरी को मारा होगा तो वो भी उसको बदला चुका के उनको फिर मट्टी कर दिया जाएगा, जब काफिर कहेगा कि काश मैं भी इनके साथ मट्टी हो जाता, मेरा हिसाब ना होता आज उस वक्त। तो ये फिर जो है फरिश्ते यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम क्यों नहीं आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने यानी कि कहाँ गया? दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते, और ये जो कफ़ार कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि ये सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको क्या आज तक हमें नहीं, फिर ये कुरान तो क़यामत तक के लिए निशानी है ना? तो हमें भी बता दिया अल्लाह ने कि इंशाल्लाह कहना है, अपने अदाब में लाना है, अपनी ज़िंदगी में लाना है इंशाल्लाह। और भूल जाए तो फिर क्या करना है, ये भी बता दिया अल्लाह ने। कैसा रब है प्यार वाला। सदके जाए इस रब के, जिसने एक-एक अदा हमें बता दी कि क्या करना है ज़िंदगी में। अल्लाह सुब्हाना व तआला सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि निअमतिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको अस्हाब कहफ के बारे में बताया, जुल्करनैन के बारे में बताया, रूह के बारे में वज़ाहत की, तो अस्हाब कहफ की तफसील इब्ने कसीर के मुताबिक अब मैं तफसील नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं। या कल को पढ़ लेते हैं? जी कल को पढ़ लें ठीक सिस्टर। है बाजी, कल कल को को पढ़ पढ़ लें। लेंगे ना, जहाँ पे हम छोड़ते थे हाँ वहाँ पे जी रखते हैं, और तफसील कल को पढ़ लेंगे, क्योंकि जी
انشاءاللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صورت پڑھیں جو ہمیں بتاتی ہے ہر روز ہر وقت کہ انسان خسارے میں ہے، سارے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کر لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ باجی۔